Heading is nitrogen metabolism, na? Madam, nitrogen is fourth most abundant. Nitrogen is fourth most abundant element present in living system. Present in living system after carbon, hydrogen and oxygen. Hello. कितने बजे? ठीक. After carbon, hydrogen and oxygen. ठीक है. Next point लिखिए. Although nitrogen is most abundant gas in atmosphere, although nitrogen is most abundant gas in atmosphere, most of the living organisms are not able to utilize this only some prokaryotes having enzyme nitrogenase, only some prokaryotes having enzyme nitrogenase can convert this atmospheric nitrogen into ammonia. Convert this atmospheric nitrogen into ammonia. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Plants have to compete with soil microbes. Plants have to compete with soil microbes for limited amount of nitrogen, present in soil. For limited amount of nitrogen present in soil. Okay. Next point. ये मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से बता रहा हूँ कि नाइट्रोजन जो होता है ब्रॉडली 3 पूल्स में प्रेजेंट होता है. दैट इज एटमॉस्फेरिक पूल, सॉइल पूल एंड बायोमास पूल. एंड मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन these 3 pools are referred as nitrogen cycle. Right on. Nitrogen is present in 3 different pools. Nitrogen is present in 3 different pools. That is soil pool, atmospheric pool, that is
atmospheric pool, soil pool, and biomass pool. नेक्स्ट पढ़ लीजिए 8. In atmospheric pool, nitrogen is present in form of nitrogen gas, from atmospheric pool. It comes to soil pool, either by biological nitrogen fixation, industrial fixation, or by physical fixation, or by physical fixation. Next पढ़ लीजिए biological nitrogen fixation is carried out by prokaryotic organism, having enzyme nitrogenase, having enzyme genase, पहले ही बताया हुआ
ठीक है। These microorganisms can be, these microorganisms can be free living or symbiotic free living can be bacteria or blue-green algae. Free living can be bacteria or blue-green algae. Aerobic bacteria like Azotobacter, Besrinkia, or anaerobic bacteria like Jerinkia, JE. Aerobic bacteria like Azotobacter or Besrinkia. Anaerobic CKIA. Blue-green algae, anaerobic like Rhodospirillum, anaerobic like Rhodospirillum. ठीक है। Blue-green algae like Nostoc, Anabina, Oscillatoria, etc. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सिम्बायोटिक, ओके, डबल एल है यार, वो इसके साथ प्रॉब्लम सट जाता है। हाँ, डबल एल है, ऑसिलेटोरिया। Symbiotic, rhizobium with legumes, and Frankia with Alnus, Frankia with Alnus mirica and Casuarina. Alnus mirica and Casuarina. ठीक है, लिख लिया ना? नहीं अभी खत्म मैंने तो बना लेना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन takes place by Haber's process, पढ़ा होगा आपने?
Haber's process. Next लिखिए during physical fixation. During physical fixation, oxides of nitrogen in atmosphere reacts with water vapor to form HNO3 which along with precipitation means rainfall or snowfall, which along with precipitation gets deposited on surface of soil and serves as source of nitrate, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. in soil, okay, ammonia is oxidized to nitrate. Ammonia is oxidized to nitrate by chemosynthetic autotrophic बैक्टीरिया. ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. तो अमोनिया इज कन्वर्टेड टू नाइट्राइट बाय नाइट्रोसोमोनास एंड और नाइट्रोकोकस, मतलब या तो अकेले या दोनों मिलके. देन नाइट्राइट इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट बाय नाइट्रोबैक्टर एंड और नाइट्रोसिस्टिस, ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. in soil there are certain bacteria certain CERTIN. In soil there are certain bacteria which converts nitrate into nitrogen gas, This process is known as denitrification. ठीक है. Yes, sir. Bacteria involved is Pseudomonas and Thiobacillus. दोनों में से कोई भी हो सकता है. Pseudomonas and Thiobacillus. Bacteria involved is Pseudomonas and Thiobacillus. ठीक है. दोनों का स्पीसीज एक ही है, that is denitrificans. ठीक है. दोनों का स्पीसीज एक ही. ना नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Conversion of ammonia into nitrate
nitrate in soil is known as नहीं कोई नहीं, is known as nitrification, is known as nitrification. ठीक है, तो अब हमारा एटमॉस्फेरिक पूल और सॉइल पूल हो गया. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. फ्रॉम सॉइल नाइट्रोजन इज प्रिफरेबली absorbed in form of nitrate by plants but some amount of nitrogen is also absorbed in form of ammonia and nitrite नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. हाँ ठीक है, दिखेगा नहीं ना फिर. कोई नहीं, लिखो ना, कोई मुझे और कुछ नहीं लिखना. फ्रॉम प्लांट बायोमास नाइट्रोजन मूव्स टू animal biomass, nitrogen moves to animal biomass, and death of plant and animal results in decaying biomass, death of plant and animal results in decaying biomass, which is acted upon by saprophytic bacteria like Bacillus ramosus, saprophytic bacteria like Bacillus ramosus, which results in a release of ammonia, and this is known as ammonification. This is known as ammonification.
ठीक है, एक बार क्विक्स देख लो, इसको समझ लो। देखो 3 पूल है, एटमॉस्फेयर, सॉइल एंड बायोमास। ठीक है, अब हुआ क्या, एटमॉस्फेयर से सॉइल पूल में आया बाय दीज 3 डिफरेंट मेथड्स, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल और फिजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल में प्रोकैरियोट इन्वॉल्व है क्योंकि इनके पास नाइट्रोजनेज है। It can be free living like bacteria, which can be aerobic or anaerobic or blue green algae, or symbiotic like rhizobium and frankia. ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, अब क्या है, सॉइल पूल में अमोनिया is converted into nitrate by chemosynthetic autotrophic bacteria and this process is known as nitrification. अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन। प्रेफरेबली प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, बट सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज आल्सो एब्जॉर्ब्ड इन फॉर्म ऑफ नाइट्राइट एंड अमोनिया। अब ये आ गया प्लांट बायोमास में, उससे ये एनिमल बायोमास में मूव करेगा, डेथ होगा दोनों का, दैट रिजल्ट्स इन डिकेइंग बायोमास। और ये डिकेइंग बायोमास जो है, इट इज एक्टेड अपॉन बाय सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया सच एज बैसिलस रेमोसस, और दैट रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ ammonia, and this process is referred as ammonification, and this whole process is छाप मारो इसको। Next is biological nitrogen fixation and nodule formation and nodule formation। ठीक है, तो हमने आपको बताया, 2-3 बार बता दिया कि भाई प्रोकैरियोट्स के पास एंजाइम नाइट्रोजिनेज है, and because of that they are able to fix atmospheric nitrogen, that is they are able to convert nitrogen into ammonia or reduce nitrogen into ammonia। अब देखो ये जो नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, जहां पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, वो कैसे होता है, अगर आपको समझ में आ गया ना तो एकदम मतलब क्लियर है। एक बार आप समझना, पहले कुछ लिखना पढ़ना बनाना नहीं। ठीक है, पहले इसको समझो। देखो अब मान लो कोई लेग्यूम का रूट है, ठीक है, ये एक लेग्यूमिनस प्लांट है, ये इसका रूट हेयर है। ठीक है, अब ये रूट जो है ये नोड्यूल बनाना चाह रहा है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाना चाह रहा है बैक्टीरिया के साथ। तो अब ये बैक्टीरिया इसको चाहिए। ठीक है, अब बैक्टीरिया जो इसको चाहिए, तो बैक्टीरिया इस रूट के पास क्यों आएगा, कुछ उसका बेनिफिट होना चाहिए। तो ये ना कुछ केमिकल सिक्रीट करता है। ठीक है, तो दिस रूट विल रिलीज केमिकल। ठीक है, अब ये केमिकल क्या काम करेगा, ये केमिकल 2 काम करता है। क्या 2 काम करता है, पहला काम ये करता है, इट एक्ट्स एज कीमो अट्रैक्टेंट, बैक्टीरिया के लिए सिग्नल का काम करता है। दूसरा, इट सर्व्स एज ए फूड फॉर इनकमिंग बैक्टीरिया, माने बैक्टीरिया को क्या सिग्नल दे रहा है कि भैया खाना है, आ जाओ। ठीक है, सो दिस केमिकल will serve dual function, it will act as chemo attractant and second it will serve as food for incoming bacteria। जैसे फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट में जो मटर होता है, अमीनो एसिड होमोसेरीन इज प्रोड्यूस्ड। अमीनो एसिड है जो केमिकल प्रोड्यूस होता है, इट इज होमोसेरीन। दिस होमोसेरीन सर्व्स डुअल फंक्शन, इट विल एक्ट एज अ कीमो अट्रैक्टेंट एज वेल एज फूड फॉर इनकमिंग बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये सिग्नल मिलने के बाद क्या होगा कि बैक्टीरिया इसके पास पहुंचेंगे। तो मान लो ये रेड डॉट से मैं राइजोबियम को डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ राइजोबियम आएगा, नहीं, बहुत सारे बैक्टीरिया आएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया आके इस रूट को कॉलोनाइज कर देंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एज फूड इज अवेलेबल इन अबंडेंस, बैक्टीरिया विल मल्टीप्लाई वेरी फास्ट एंड विल कॉलोनाइज द रूट। ओके, सो एज फूड इज अवेलेबल इन abundance,
bacteria multiplies very fast and colonizes the root. ठीक है, अब देखो बैक्टीरिया आ तो गया, लेकिन हमें कौन सा बैक्टीरिया चाहिए? राइजोबियम चाहिए कि भाई रूट और राइजोबियम के बीच में बातचीत होना चाहिए। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या होगा कि देयर इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप और इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट एंड बैक्टीरिया और रूट और बैक्टीरिया। ओके, सो host bacteria relationship is established। अब ये कैसे एस्टैब्लिश होगा, क्या क्या ऐसा होगा जिसके कारण एस्टैब्लिश होगा? दिस होस्ट बैक्टीरिया रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ ए सुगर बाइंडिंग प्रोटीन लेक्टिन। इट्स अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन, अलग अलग टाइप के लेक्टिन होते हैं। ये लेक्टिन्स जो होते हैं ये स्पेसिफिक शुगर से ही बाइंड करते हैं। तो ये जो लेक्टिन प्रोड्यूस करेगा रूट, वो सिर्फ और सिर्फ किसके शुगर से बाइंड करेगा? राइजोबियम के वॉल पे जो शुगर होगा उसको रिकॉग्नाइज करके बाइंड करेगा। सो दिस होस्ट बैक्टीरिया रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ sugar binding protein lectin। ठीक है, अब हम सिर्फ और सिर्फ होस्ट को और राइजोबियम को लेके चल रहे हैं। अब हम दूसरे बैक्टीरिया को कंसीडर यहां नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके बीच में क्या हो गया है? रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया है। ठीक है, अब ये जो दोनों हैं एक दूसरे को पहचान गए हैं, अब दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाएगी, कम्युनिकेशन विल स्टार्ट। ठीक है, सो नाउ व्हाट विल हैपन? बैक्टीरिया विल रिलीज सिग्नल। ठीक है, बैक्टीरिया सिग्नल रिलीज करेगा। क्या का सिग्नल रिलीज करेगा? 2 3 4 सिग्नल एक साथ कर देता है। पहला, ओवर प्रोडक्शन ऑफ रूट हेयर, कि भैया रूट हेयर का नंबर बढ़ाओ। दूसरा, थिकनिंग ऑफ रूट हेयर, जो रूट हेयर है उनको थिक करो। तीसरा, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर, रूट हेयर ऐसे कर्ल करेगा। ठीक है, चौथा, माइटोजेनिक सिग्नल, दैट इज सिग्नल फॉर माइटोसिस। कहां पे? इन द सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल ऑफ रूट। क्यों भेज रहा है? वो इसलिए भेज रहा है कि भैया नंबर बढ़ाओ, वहां पे मुझे आके वहां पे रहना है। ठीक है, तो बैक्टीरिया विल रिलीज सिग्नल। पहला, ऐसा नहीं है कुछ सीक्वेंस में होता है, कोई भी आगे ऐसा नहीं है। ठीक है, दैट इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ रूट हेयर, थिकनिंग ऑफ रूट हेयर, यही बता रहा हूं, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। ठीक है, फोर्थ इज माइटोजेनिक सिग्नल फॉर सेल डिवीजन इन cortex and पेरिसाइकिल। ठीक है, ये सारे सिग्नल ये रिलीज करेगा। अब इसका क्या होगा कि आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसे ओवर प्रोडक्शन हो गया।
और इधर सेल के नंबर बढ़ेंगे, डिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, नाउ बैक्टीरिया विल ऑर्गेनाइज इटसेल्फ टू फॉर्म इन्फेक्शन थ्रेड। बैक्टीरिया विल ऑर्गेनाइज इटसेल्फ टू फॉर्म इन्फेक्शन थ्रेड, मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। तो यहां पे क्या होगा, बैक्टीरिया will organize to form infection thread, ठीक है। तो क्या दिखेगा आपको, बैक्टीरिया जो है कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया है, दिस इज योर इन्फेक्शन थ्रेड, ठीक है। क्योंकि एक स्ट्रीमलाइन ऑर्गेनाइजेशन आया था थ्रेड लाइक, और वो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, इसलिए इन्फेक्शन थ्रेड कहते हैं, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया को इसके अंदर घुसना है थ्रू दिस रूट हेयर, ठीक है। तो हमें पता है कि रूट का अगर है प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगा, सेल वॉल इज अ बैरियर। तो पहला काम क्या करेगा ये बैक्टीरिया जो है, इन्फेक्शन थ्रेड will release cell wall digesting enzyme, ठीक है। ये जो है वो सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज करेगा जो सेल्यूलोज और पेक्टिन को रिमूव कर देगा, ठीक है। अब मैं सिंगल रूट हेयर लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिंगल होगा बट समझने में आसानी होगी। देखिए, तो ये हमारा हो गया और ये एक सिंगल रूट हेयर है, ठीक है। और ये हमारा इन्फेक्शन थ्रेड हो गया, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया को इसके अंदर एंटर करना है, सेल वॉल हट गया है। दिस बैक्टीरिया विल एंटर इनसाइड द रूट हेयर विदाउट ब्रेकिंग मेम्ब्रेन। हाउ इट इज पॉसिबल कि बैक्टीरिया विल एंटर इनसाइड द मेम्ब्रेन और रूट हेयर विदाउट ब्रेकिंग मेम्ब्रेन? होता क्या, देखो, ये मान लो रूट हेयर है, ठीक है। होगा क्या, दिस रूट हेयर विल शो इन्वेजिनेशन, ये यहां से ऐसे करके इन्वेजिनेट कर जाएगा, एंड दैट इन्वेजिनेशन विल क्रिएट ए पैसेज, एंड थ्रू दिस पैसेज बैक्टीरिया विल एंटर, एंड फाइनली दिस इन्वेजिनेशन विल फ्यूज विद द सेल ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये फ्यूज करेगा बैक्टीरिया विल बी रिलीज टू दीज कॉर्टिकल सेल्स, और इसके बगल में बहुत सारे जो कॉर्टेक्स के सेल होंगे और जो पेरिसाइकिल के सेल होंगे उनमें ये बैक्टीरिया पहुंच जाएगा थ्रू प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, ठीक है, पहुंच गया, ओके। अब ये जो सेल्स हैं, दीज सेल्स will develop into bacteroid, and these bacteroid, यही बता रहा हूं, will form root nodule where fixation of nitrogen takes place। होता क्या है कि जब सेल्स के अंदर ये एंटर करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, सेल का साइज बढ़ेगा, अप टू 40 टाइम्स बढ़ जाता है, हाँ, और उसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरोइड, बैक्टीरिया कंटेनिंग सेल। और ये बैक्टीरोइड मिल के साथ में क्या बनाते हैं, रूट नोड्यूल, ठीक है। और फिर उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन को क्या होगा वो आगे में पढ़ेंगे। ये समझ में आया? फिर से एक बार देख लो, मैंने क्या कहा, किसी भी रूट को अगर नोड्यूल बनाना है तो उसको बैक्टीरिया चाहिए,
सबसे उधर ही देखना, मेरी तरफ नहीं, उधर देखना। सबसे पहले वो बैक्टीरिया को बुलाएगा, केमिकल रिलीज करेगा। वो केमिकल दो काम करता है, पहला कीमो अट्रैक्टेंट, दूसरा फूड। As food is available in abundance, bacteria will multiply very fast and it will colonize the root. ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि now the next step is to establish the host and bacterial relationship. So root will release sugar binding protein lectin, which will recognize the sugar present on the surface of bacterial wall. So now host bacterial relationship is established. Now bacteria will release signal for overproduction of root hair, thickening of root hair, curling of root hair, and mitogenic signal, that is signal for cell division in roots cells of cortex and pericycle. अब उसके बाद क्या होगा, bacteria will organize itself to form infection thread. ठीक है, now this infection thread will release cell wall digesting enzyme which will digest the cell wall of root hair. ठीक है, then what will happen, this bacteria will enter inside the root hair without breaking membrane, because of invagination passage is created, and through that bacteria will enter. Finally, this bacteria will enter into cells of cortex and pericycle, which will develop into bacteroid, and these bacteroid will together form root nodule where fixation of nitrogen will take place. Yes, sir. Clear है सबको? Yes, sir. हाँ जनता भाई, इधर समझ में आया सबको? सर कर्लिंग का क्या सिग्निफिकेंस है? तभी तो कर्लिंग का यही सिग्निफिकेंस है कि तभी तो उसके कांटेक्ट में आएगा बैक्टीरिया थ्रेड। ठीक है, नहीं हो पता, चलिए ओके, इसको बना लीजिए, इसमें कुछ लिखवाने की जरूरत है, मैंने सब लिख दिया है, बना लीजिए, जो नहीं समझ में आएगा लिखवा दूंगा। तो हमें पता है कि जो राइजोबियम है, इट फॉर्म्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ये हमें पता है। राइजोबियम जो है सॉइल में, it is also present in free living form. ठीक है, it is bacillus, bacillus समझते हैं, rod shaped, gram negative bacteria. So when it is not in symbiotic relationship, it is free living, and when it is free living, it is aerobic. But when it enters into symbiotic relationship, it becomes anaerobic. Write down, rhizobium, write down, rhizobium which forms symbiotic association with rhizobium which forms symbiotic association with roots of leguminous plant, is gram negative bacillus, is gram negative bacillus when it is free living, it is aerobic, but when it enters into symbiotic relationship, it becomes anaerobic. तो ये फैकल्टेटिव एरोब है कि फैकल्टेटिव एनारोब है? Anaerobe है। Basically it is aerobic, but it can also serve in, so in bracket write down facultative anaerobe. ठीक है, फैकल्टेटिव एनारोब। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण इसको एनारोबिक होना पड़ता है? ठीक है, रीजन क्या है देखो, इसको समझो। हमें पता है कि दिस एंजाइम इज रिक्वायर्ड
ठीक है, फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। Yes, sir. ये जो नाइट्रोजनस एंजाइम है, इट इज ए टेट्रामर। टेट्रामर समझे, 4 सब यूनिट है इसके, ठीक है, 2 लार्ज सब यूनिट एंड 2 स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। ये जो लार्ज सब यूनिट है, इट इज MOFE सब यूनिट, दैट इज मोलिब्डेनम एंड आयरन सब यूनिट, ठीक है। जो स्मॉलर सब यूनिट है, इट इज आयरन सब यूनिट, FeFe सब यूनिट, ठीक है। होता क्या है, दिस लार्जर सब यूनिट, दैट इज MOFE सब यूनिट, gets destabilized in presence of oxygen, and that's why we have to maintain anaerobic condition inside the root nodule, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, नाइट्रोजन काम ही नहीं करेगा। तो अगर नाइट्रोजन काम ही नहीं करेगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। समझ में आया क्यों हमको नाइट्रोजन इसके लिए एनारोबिक कंडीशन मेंटेन करना है। राइट डाउन, environment within the root nodule is anaerobic. Within the root nodule is anaerobic because in presence of oxygen, larger subunit of nitrogen is that is MOFE subunit gets destabilized, and as a result enzyme nitrogenase becomes non-functional. 18 तारीख 19 तारीख 18 नॉन फंक्शनल, ठीक है। क्लियर है पॉइंट सबको? Yes, sir. अब ये क्वेश्चन आता है कि हाउ एनारोबिक कंडीशन इज मेंटेन्ड विद इन द रूट नोड्यूल। So this anaerobic condition within the root nodule is maintained with the help of a pink color pigment, and that pigment is like hemoglobin. ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज ए ऑक्सीजन स्कैवेंजर। तो कहीं से भी अगर ऑक्सीजन अंदर आया, कहीं से भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, इट विल कंज्यूम दैट ऑक्सीजन। तो हमेशा एनारोबिक कंडीशन ये मेंटेन रखेगा, ठीक है। थर्ड डाउन, एनारोबिक कंडीशन within the root nodule, anaerobic condition within the root nodule is maintained with the help of a pink color pigment. Anaerobic condition within the root nodule is maintained with the help of a pink color pigment like hemoglobin, which acts as
oxygen scavenger, which acts as oxygen scavenger. ठीक है, देख लिया? ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है, इट इज एनर्जेटिकली हाईली एक्सपेंसिव. ठीक है, मतलब इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, एंड दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय रेस्पिरेशन ऑफ होस्ट सेल. नाइट्रोजन फिक्सेशन तो बैक्टीरिया कर रहा है, लेकिन उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो कौन देगा? प्लांट देगा. ठीक है, थ्रो डाउन. नाइट्रोजन फिक्सेशन is energetically highly expensive process. Is energetically highly expensive process. And energy required for this expensive process, and energy required for this is provided by respiration of होस्ट सेल. एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन में होता है, तो यहां पे होस्ट सेल के रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, 8 ATP is required. In order to produce one molecule of ammonia, 8 ATP is required. तो N2 8H plus 8E minus plus 16 ATP, तो 2 NH3 बन रहा, तो एक के लिए कितना चाहिए? तो 8 चाहिए. ठीक है, मॉलिक्यूल. ठीक है, ये इक्वेशन लिख लीजिए. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Best stage study to study morphology of root nodule is just before flowering. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि नाइट्रोजन जो नोड्यूल में बनता है वो फ्लावरिंग के प्रोसेस में एक्सपोर्ट हो जाता है, वहां से यूटिलाइज हो जाता है, तो ऑब्वियसली नोड्यूल का साइज क्या हो जाएगा? डिमिनिश कर जाएगा, छोटा हो जाएगा. तो फ्लावरिंग से पहले वहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन स्टोर्ड रहेगा, तो उसका साइज बड़ा रहेगा, तो आप आसानी से उसके नोड्यूल को स्टडी कर सकते हो. समझ में आया? ओके ना, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि most of the nitrogen from the soil is absorbed in form of nitrate by plant. ठीक है, now this nitrate is transferred to leaf, where again this nitrate is reduced to ammonia. ठीक है, in two steps. First, this nitrate is reduced to nitrite by enzyme nitrate reductase. Then this nitrite is reduced to ammonia by enzyme nitrite reductase. Write down. Plant preferably absorbs nitrogen. In form of nitrate. It is transferred to leaf
where it is reduced to ammonia, where it is reduced to ammonia by enzyme to ammonia by enzyme nitrate reductase and nitrite reductase. बना लीजिए जल्दी से, बन गया? Yes, sir. Head next heading is assimilation of ammonia. Next heading is assimilation of ammonia. ठीक है, ये जो अमोनिया है, ठीक है, एट फिजियोलॉजिकल पीएच, मतलब जब प्लांट के अंदर अमोनिया बनेगा, इट गेट्स प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड मतलब H+ से आगे जुड़ जाता है, and that results in formation of ammonium ion, and this ammonium ion cannot be stored. Why? There are two reasons. First reason is it is highly toxic. ठीक है, तो टॉक्सिक है तो प्लांट को नुकसान करेगा. Second, it interferes with energy metabolism. Energy metabolism means production of ATP. So as soon as there is formation of ammonium ion or ammonia is there within the plant body, it will be immediately metabolized. How it will be metabolized? There are various methods like reductive amination, transamination, formation of amide and formation of urides. यूरिड्स, ठीक है, तो ये मेथड्स है जिसके थ्रू ये अमोनिया इमीडिएटली क्या हो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा. ठीक है, थ्रो डाउन. within the plant body, within the plant body, within the plant body at physiological pH, at physiological pH, ammonia gets, हाँ, बंद कर दूं? At physiological pH, ammonia gets, तुम लोगों को मना किया ना? Ammonia gets protonated at physiological pH. Ammonia gets protonated to form ammonium ion, to form ammonium ion. It cannot be stored by plant. It cannot be stored by plant because it cannot be stored by plant because first, it is highly toxic. It is highly toxic and it interferes with energy metabolism, that is production of ATP, that is production of ATP,
so it is immediately metabolized. So it is immediately metabolized. ठीक है, Yes, sir. बाकी कहानी अगली क्लास में.